ساز روحانی معین الدین اجمیری۔ میں نے قرآن پاک کا ایک ٹکڑا بیان کیا۔ رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مفہوم آیت پاک، بے شک خبردار جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ مفہوم آیت پاک، نہ اولیاء اللہ کو، صاف لفظوں میں سنو، جو اللہ کے ولی ہیں یعنی اولیاء اللہ کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ انہی اولیاء کرام میں سے ایک ولی جسے غریب نواز کہا جاتا ہے، جسے ہند الولی کہا جاتا ہے، جسے عطائے رسول کہا جاتا ہے، جو ہندوستان کا بادشاہ بنا ہے۔ لوگوں کی حکومتیں آئیں کتنے سال تک؟ 5 سال تک آئی اور چلی گئی، لیکن قربان جاؤ غریب نواز پر، لیکن قربان جاؤ عطائے رسول پر، لیکن قربان جاؤ ہند الولی پر، لیکن قربان جاؤ سلطان ہند پر۔ وہ غریب نواز 800 سال سے زائد ہو گیا، ابھی بھی بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ اور وہ ایسے بادشاہ، ایسے بادشاہ، ایسے بادشاہ کہ جو 5 سال کے لیے بنتے ہیں انہی کے در سے دیا جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی چاہے کہ خود اپنی بادشاہیت بنا لے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر بادشاہیت بھی ملے گی تو غریب نواز کے در سے ملے گی۔ آؤ غریب نواز کے بارے میں کچھ سنتے چلو۔ کون غریب نواز؟ مدینہ طیبہ سے رفت سفر کیا اجمیر کے لیے۔ جب اجمیر آئے تو آپ انا ساگر کے قریب تھوڑی سی جگہ میں بیٹھ گئے، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ اس انا ساگر سے وضو کے لیے پانی منگایا، اور آپ کے جو ساتھی تھے وہاں جا کر کے وضو کرنے لگے۔ لیکن وہاں کا جو راجہ تھا پرتھوی راج، سنو آج غریب نواز کا عرس ہے، آؤ غریب نواز کی شان میں کچھ بیان کیا جائے۔ آج غریب نواز کا عرس ہے تو کچھ سنتے چلو، غریب نواز کے کرامتیں کیا ہیں، غریب نواز کے شان و شوکت کیا ہے، غریب نواز کیسے غریب نواز ہے، سنتے چلو۔ وہ غریب نواز ہے، انا ساگر کے قریب بیٹھ گئے۔ انا ساگر کا پانی اس وقت بہت پوتر سمجھا جاتا تھا، ہندوؤں کے اندر بہت پوتر سمجھا جاتا تھا، اور وہاں کا راجہ پرتھوی راج تھا۔ جب غریب نواز نے وہاں پر بیٹھ گئے اور اپنے کچھ ساتھیوں کو بیٹھا لیا، آپ وہاں سے وضو کرتے، آپ وہاں سے وضو کرتے، آپ کے ساتھی وضو کرتے، آپ کے ساتھی وضو کرتے، لیکن اس انا ساگر کو وہاں کے لوگ بہت پوتر سمجھتے تھے، اور وہاں پر ایک مندر بھی تھا، اور وہاں پر ایک مندر بھی تھا۔ لوگ دور دور سے آتے تھے اور اس مندر کے اندر پوجا اور پاٹ کرتے تھے، اور اس انا ساگر کے اندر غوطہ لگا کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پر ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اگر ہم گنہگار آتے ہیں تو اس میں ڈبکی لگاتے ہیں، ڈبکی لگانے کے بعد ڈبکی جب لگا دیتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن اسی انا ساگر کا واقعہ آؤ غریب نواز کی شان میں سنو۔ غریب نواز ہے اور ان کے ساتھی ہیں، وہاں پر وضو کیا کرتے ہیں۔ لوگ دیکھنے لگے، ارے کلی بھی کر رہے ہیں، ارے ناک میں پانی بھی ڈال رہے ہیں، ارے چہرہ بھی دھل رہے ہیں، ارے سر کا مسا بھی کر رہے ہیں، ارے پیر بھی دھل رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ دیکھا نہیں گیا، اور لوگ جا کر کے راجہ کی بارگاہ میں کہنے لگے، ارے ایک فقیر آیا ہے، ایک فقیر بابا آیا ہوا ہے جس کے ساتھی یہاں پر وضو کیا کرتے ہیں، یہاں پر وضو کیا کرتے ہیں، اگر اس کو روکا جائے وہاں پر پیر بھی دھلتے ہیں، وہاں پر سر بھی دھلتے ہیں، وہاں پر چہرہ بھی دھلتے ہیں، وہاں پر ہاتھوں کو بھی دھلا کرتے ہیں۔ اور یہ انا ساگر کا پانی ہمارے مذہب میں بہت پوتر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب میں لوگ دور دور سے آتے ہیں اور اس میں ڈبکی لگا کر کے اپنے گناہوں کو جھاڑتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ غریب نواز پر، لیکن قربان جاؤ ہند الولی پر، صرف غریب نواز کی حکومت
लोगों पर ही नहीं बल्कि पानी पर भी गरीब नवाज की हुकूमत है। सिर्फ गरीब नवाज की हुकूमत लोगों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर गरीब नवाज की हुकूमत चला करती है। अब गरीब नवाज बैठ गए, गरीब नवाज जब बैठ गए तो वहां पर राजा पृथ्वी राज के ऊंट बैठा करते थे। वक्त आया, शाम हुआ, ऊंट को लेकर के दरबारी आए। जब लेकर के आए तो क्या देखते हैं, उस जगह पर गरीब नवाज बैठे हुए हैं। कहा बाबा आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर हमारे ऊंट बैठा करते हैं। गरीब नवाज ने कहा अरे सारी जमीन छूटी हुई है, कहीं और पर बांध दो। आखिर यही क्यों बांधोगे, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन वो बदतमीजी से पेश आए तो गरीब नवाज ने फरमाया था अच्छा चलो, अगर तुम्हारे ऊंट बैठते हैं तो तुम्हारे ऊंट बैठेंगे। देखो गरीब नवाज की क्या शान है। गरीब नवाज की हुकूमत सिर्फ लोगों पर ही नहीं 800 साल से चल रही है बल्कि जानवरों भी चला किया करती है और अना सागर के पानी पर भी चला करता है। और वो गरीब नवाज है, फरमाते हैं अगर तुम्हारे ऊंट बैठते हैं तो तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। ये कहकर के आप चले गए। उसके बाद जब ऊंट बैठ गए, सुबह हुई और जब ऊंट को उठाना चाहे दरबारी तो वो नहीं उठ रहे हैं। देखो गरीब नवाज की क्या शान है। जब दरबारी उठा रहे हैं उसको मार भी रहे हैं लेकिन वो ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे बैठाया किसने है, गरीब नवाज ने। अरे उनको बैठाया किसने है, गरीब नवाज ने बैठाया है। और जिसको गरीब नवाज बैठा दे उसको किसी माई के लाल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उठा दे। अरे हम गुलामों को तो गरीब नवाज के नाज है। हम इस दुनिया के अंदर अगर गरीब नवाज की शान पर, गरीब नवाज की मोहब्बत पर जी रहे हैं तो कसम है उस रब्बे काबा की, कल मैदान महशर में उसी गरीब नवाज की गुलामी में, और गुलामी ऐसे कि गुलामी के अंदर गरीब नवाज जब जन्नत में जाएंगे हम गुलामों को भी साथ लेकर के जाएंगे। और वो इसलिए नहीं बल्कि उस्ताद ज़मान फरमाते हैं कि ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वहाँ मैं अर्ज कर रहा था कि वहाँ पर राजा पृथ्वी राज के ऊंट बैठ गए लेकिन गरीब नवाज ने बैठाया था। अब उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, अब उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरबारी परेशान हो गए। परेशान होने के बाद राजा की बारगाह में गए। राजा के पास जा करके और अर्ज करने लगे राजा मामला अजब हो गया है, राजा मामला अजब हो गया है। हमारे ऊंट जहाँ बैठे हैं वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने तमाम कोशिशें कर ली लेकिन अब उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ करिए। तो फरमाया उसमें उन्हीं साथियों में से एक ने कहा यहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे, यहाँ पर एक फकीर बैठा हुआ था जिसने ये कह के गया था कि तुम्हारे ऊंट बैठते हैं तो यही बैठेंगे। राजा ने कहा कुछ हो ना हो उसी बाबा का कारनामा है, जाओ उस बाबा को ढूंढो और उस बाबा से माफी तलाफी करो। माफी तलाफी करने के बाद कह दो ये बेजान जानवर है, अगर ये आज नहीं उठे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं तो ये मर जाएंगे। अब वो लोग अब दरबारी ढूंढने लगे गरीब नवाज को। जब देखा गरीब नवाज थोड़ी दूर पर आराम फरमा रहे हैं और गरीब नवाज के पास गए, जाकर के कहने लगे ऐ बाबा हमसे गलती हो गई है, ऐ बाबा हमसे गलती हो गई है, हमारे ऊंट बैठ गए, उठने का नाम नहीं ले रहे, बेजान जानवर है, बाबा कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं तो इनकी जान चली जाएगी। अरे वो तो गरीब नवाज है, दिलों के सहारे का नाम गरीब नवाज है, टूटे दिल के सहारे का नाम गरीब नवाज है, बेजान जानवरों को उठाने का नाम गरीब नवाज है, टूटे दिलों के सहारे का गरीब नवाज है। वो गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है जाओ लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं करना। कहा अब जिसके हुक्म से बैठे थे उसके हुक्म से तुम्हारे ऊँट उड़ जाएंगे। अब वो गए उठाए तो उठ गए। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अब जब लोगों ने देखा अरे बाबा जादूगर है, अरे बाबा जादूगर है, अरे बाबा ऊंट पर जादू कर दिए हैं, इनको किसी तरीके से यहाँ से निकाला जाए। लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये नहीं जान रहे थे इस हिंदुस्तान पर अगर किसी की बादशाहियत चलेगी तो वो गरीब नवाज की चलेगी। उनको ये मालूम नहीं था ये राजा बने थे तो कुछ टाइम के लिए बने थे, लेकिन ये राजा बनेगा तो सिर्फ आज और कल के लिए नहीं बल्कि कसम है उस रब्बे काबा की सुबह क़यामत तक राजा बनेगा। और वो ऐसा राजा बनेगा
जिंदाबाद। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। अब राजा पृथ्वी राज की बारगाह में दरबारी गए और कहने लगे इस बाबा को यहाँ से निकालो वरना हमारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हम जिस पानी को पवित्र समझते हैं, हम जिस पानी के अंदर आकर के गोता लगाकर अपने गुनाहों को झाड़ते हैं, ये यहाँ पर तो अपने पैर धुला करते हैं। इस बाबा को यहाँ से किसी तरीके से निकालो। अब दरबारी आए और बाबा यानी गरीब नवाज से थोड़ी बदतमीजी से पेश आने लगे और कहने लगे तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि गरीब नवाज को किसी और ने नहीं भेजा बल्कि मदीने के ताजदार ने भेजा है। गरीब नवाज को किसी और ने नहीं भेजा बल्कि आमीना के लफ्ते जिगर ने भेजा है। और वो आका ऐसे नहीं भेजे हैं बल्कि ये कह के भेजे थे जाओ तुम्हारी बादशाहियत हिंदुस्तान में चलेगी और वो ऐसे चलेगी कि सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि जानवरों भी चलेगी। और उसके बाद अगर बेजान चीज है तो पानी पर भी चला करती है। गरीब नवाज के साथ लोग बदतमीजी से पेश आने लगे तो गरीब नवाज ने अपना एक कासा दिया। कासा देने के बाद फरमाया ऐ मेरे मुरीद जाकर के और अना सागर से कह देना तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। एक कासा है, गरीब नवाज का कासा है। अब जाकर के आपका मुरीद हजरत कुतुब बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कासा को लेकर के और अना सागर के करीब गए। करीब जाने के बाद लगा दिया और कहा तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है, तुझे हिंदुल वली ने बुलाया है, तुझे ताजदारे हिंदुस्तान ने बुलाया है। अरे वो ऐसे वली थे, अरे वो ऐसे वली थे और वो उनके ऐसे मुरीद थे। आज का अक्ल का अंधा होता, जहन्नम का कुंदा होता, वो तो कह देता अरे गरीब नवाज छोटा सा कासा है, अना सागर तो देखो। लेकिन वो भी मुरीद जानते थे भेजा किसने है, गरीब नवाज ने। और जब गरीब नवाज की ये शान है तो अहमद मुख्तार की क्या शान होगी जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। हजरत कुतुब बख्तियार काकी है, अना सागर के पास कासे को ले जाकर के लगा देते हैं। कहते तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। सिर्फ नाम सुनते ही तमाम अना सागर का पानी उस छोटे से कासे में आकर के समा गया। और सिर्फ अना सागर का पानी ही नहीं बल्कि उलमा नकल फरमाते हैं कि वहां पर जितने तालाब और गड़े और नाले थे तमाम पानी आकर के उस कासे में समा गया। अरे कुर्बान जाओ गरीब नवाज पर। जब वो कासा गरीब नवाज की बारगाह में पेश हुआ और लोग देखे अना सागर तो खुश्क हो गया है, अना सागर तो खुश्क हो गया है। अब वो लोग जो अब उसको पवित्र समझा करते थे, अब वो लोग जो उसमें डुबकी लगा करके अपने गुनाहों को झाड़ा करते थे, अब वो लोग जो उसमें उसको पानी पीने के लिए सैराब किया करते थे वो तो परेशान हो गए। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। छोटा सा अना सागर है, छोटा सा कासा है, इतना बड़ा अना सागर है, लेकिन इस छोटे से कासे के अंदर पूरा अना सागर कैसे समा गया, कैसे समा गया। लोग हैरान है, परेशान है। अब राजा पृथ्वी राज के बारगाह में गए, कहने लगे राजा अब मामला तो अजब हो गया है, पूरा अना सागर बाबा के कासे में समा गया। बाबा तो मुझे जादूगर लगता है, बाबा तो मुझे जादूगर लगता है। राजा पृथ्वी राज ने कहा अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जादूगर नहीं बल्कि वली कामिल है। वो कहता है मुझे तो ऐसा लगता है ये फकीर कोई और फकीर नहीं बल्कि फकीर कामिल लग रहा है। जाओ उससे माफी मांगो और उससे कहो कि तुम अना सागर का पानी वापस कर दो और आपको पीने के लिए भी दिया जाएगा, आपको वजू करने के लिए भी दिया जाएगा। वो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला है, उनके पास दरबारी गए, कहने लगे गरीब नवाज जानवर अगर नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, लोग अगर नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, यही अना सागर है, आप इसका पानी वापस कर दीजिए। रहम दिल औलिया अल्लाह तो हुआ करते हैं, वो औलिया अल्लाह तो रहम दिल हुआ ही करते हैं। मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। आपने अपने मुरीद से फरमाया जाओ अना सागर को, जाओ कासे को अना सागर में पलट दो। अब वो मुरीद जाते हैं और अना सागर में कासे को पलट देते हैं। जब ये वो मुशरिकीन देखते हैं अरे गरीब नवाज की ये शान है तो उलमा नकल फरमाते हैं कि उस वक्त 32,000 मुशरिकों ने कलमा शहादत पढ़ के हुजूर गरीब नवाज के दस्ते मुबारक पर तौबा करके कलमा शहादत पढ़ा था। ये चले थे तबलीग करने के लिए, ये चले थे दीन को फैलाने के लिए। जो अपने सर पर
तसरी और बिस्तर को रख करके चले तबलीग करने के लिए। ये निकले तो गली गली निकले, ये निकले तो मोहल्ले मोहल्ले निकले, ये निकले तो नगर नगर निकले, ये निकले तो डगर डगर निकले। लेकिन और जरा देखो तबलीग गरीब नवाज ने जैसे किया है। ये आज के तबलीगी जमातियों की तरह नहीं, बल्कि गरीब नवाज ने जब करामत दिखाया है और जब तबलीग दीन की है तो ऐसे नहीं किया है, बल्कि अना सागर को लेकर के और वापस करके और ये करामत दिखा करके लोगों के दिल को मुतमईन करके और उनको कलमा शहादत पढ़ा। ये चले तो मस्जिद में तबलीग करने के लिए चले, ये चले तो कहने लगे चलो अल्लाह रसूल की बातें करेंगे, अल्लाह रसूल की बात। अरे तबलीग किससे किया जाता है? तबलीग के लिए किसको बुलाया जाता है? चार मसले तो पता नहीं है, चले हो तबलीग करने के लिए। तबलीग तो गरीब नवाज ने किया है और वो ऐसे किया है और वो ऐसे किया है कि मुशरिकीन तो मुशरिकीन है, अपने तो अपने है, पराए भी गरीब नवाज के दस्ते मुबारक पर तौबा करके और ईमान लाए हैं। और वो ऐसे ईमान लाए हैं, ऐसे ईमान लाए हैं कि आला हज़रत फरमाते हैं तकरीबन हुजूर गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को कलमा शहादत पढ़ाया। और वो ऐसे नहीं पढ़ाया, बल्कि उस पुराने ज़माने के ज़बान में सुनो कि ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। ये चले थे तबलीग करने के लिए तो इन्होंने मुसलमानों को पकड़ा, इन्होंने ईमान वालों को पकड़ा। कहने लगे अरे हम अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, अरे हम अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, हम कोई लेकिन हमारा भोला भाला सुन्नी, हमारा भोला भाला मुसलमान जब उनके झांसे में फंस जाता है तो वो क्या कहता है? अरे वो तो अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, अरे वो तो अल्लाह रसूल की बातें, कोई इख्तिलाफ की बातें नहीं करते। अगर वो इख्तिलाफ की बातें नहीं करते हैं तो जरा हमें ये बताओ, जो मोमिन जो मुसलमान गरीब नवाज की छठी करता है फिर वो क्यों बंद कर देता है? फिर मुझे ये बताओ, फिर मुझे ये बताओ, जो गौसे पाक का लंगर करता है वहां जाने के बाद फिर क्यों बंद कर देता है? फिर मुझे ये बताओ, जो जश्न ईद मिलादुन नबी पे झंडे लगाता है वहां जाने के बाद क्यों बंद कर देता है? फिर मुझे ये बताओ, जो औलियाए किराम के मज़ारात पर हाजिरी देता है वहां पे जाने के बाद क्यों बंद कर देता है? हमारा सुन्नी कहता है, अपने आप का सुन्नी कहलवाने वाला कहता है अरे वो तो अल्लाह और रसूल की बातें करते हैं। अरे वो अल्लाह और रसूल की बातें नहीं, बल्कि तुमको अपने झांसे में लेकर के तुम्हारे ईमान का डाका डालते हैं, तुम्हारे ईमान को लूटते हैं। और ऐसों के लिए ही आला हज़रत ने 100 साल पहले बयान फरमा दिया था कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। आला हज़रत ने जो हमें बताया था वो तुम्हारे घर में चोरी करने वाले चोर के बारे में नहीं बताया था, इन्हीं चोरों के बारे में बताया था, इन्हीं डाकुओं के बारे में बताया था। अपना ही सुन्नी कहता है अरे नहीं वो अल्लाह और रसूल की बातें करते हैं, अरे वो अल्लाह। फिर मुझे बताओ ना, फिर मुझे बताओ ना क्यों खिचड़े को शिर्क कहता है? फिर मुझे बताओ कि मज़ारात पर चादरें डालना क्यों बिदअत बताता है? फिर मुझे बताओ कि बारगाहों में हाजिरी देना क्यों गलत बताता है? अरे वो तुम्हारे ईमान पे हमला करते हैं। अभी वक्त है, अभी वक्त है, अपनी आंखों को खोलो, अपने दिल की खिड़कियों को खोलो और अच्छी नजर से देखो। ये तुम्हारा ईमान लूटने के लिए तबलीग करते हैं, लेकिन तबलीग गरीब नवाज ने किया तो फिर किसी मुसलमान को नहीं पकड़ा, किसी ईमान वाले को नहीं पकड़ा, किसी टोपी और दाढ़ी वाले को नहीं पकड़ा। जब जब देखोगे तो कहीं मुशरिकों को कलमा पढ़ा रहे हैं, जब जब देखोगे तो कहीं ईसाइयों को कलमा पढ़ा रहे हैं, जब जब देखोगे तो कहीं नमरूदियों को कलमा पढ़ा रहे हैं, जब जब देखोगे तो कहीं मुशरिकों को कलमा पढ़ा रहे हैं। और वो ऐसे पढ़ाते हैं कि गरीब नवाज तो वो है, गरीब नवाज तो वो है। 800 साल गुजर गया, आज भी मोमिन और मुसलमान से ज्यादा गरीब नवाज के दर पर ये टोपी वाले तो बात की बात है, ये चोटी वाले जाते हैं गरीब नवाज की बारगाह में और अपनी अकीदत पेश करते हैं। अरे इनको तो समझ में आ गया, लेकिन अक्ल के अंधों को समझ में नहीं आया गरीब नवाज का दर कौन सा दर है। अरे वो दर वो है जो हमको उस्ताद ज़मान ने बताया कि गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज करो, गरीब नवाजी
मेरे गरीब गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। गरीब नवाज की बात आ गई तो सुनते चलो। ये कहते हुजूर को इल्म गैब नहीं है, ये कहते हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, लेकिन आओ जरा चलो हुजूर के शहजादों के शहजादों के शहजादों के शहजादे गरीब नवाज की बारगाह में चलो। इल्म गैब देखना चाहते हो, गरीब नवाज की बारगाह में चलो। पीछे का इल्म देखना चाहते हो, अरे गरीब नवाज की बारगाह में चलो, गरीब नवाज की बारगाह में चलो। आपका एक मुरीद भाई था, एक आपका पीर भाई था। सुभान अल्लाह। कौन सा भाई था, जरा जोर से बोलो। पीर भाई था, उसका इंतकाल हो गया। सुनो देखो गरीब नवाज को इल्म गैब कैसा है। ये बोले तो क्या बोले, हुजूर को इल्म गैब नहीं, लेकिन गरीब नवाज ने इल्म गैब को बता करके बता दिया। अरे ये तो मेरी बात है, मेरे नाना जान की क्या बात होगी, अरे ये तो मेरी बात है, तो फिर अहमद मुख्तार की क्या बात होगी। वो गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरे एक पीर भाई का इंतकाल हो गया, और जब इंतकाल हो गया लोगों ने दफना दिया। दफनाने के बाद जब लोग लौट गए, मेरा पीर भाई था इसलिए मैं थोड़ी देर रुक गया, और जब रुक गया तो मैंने क्या देखा, कब्र के अंदर है, गौर करने की बात है, कब्र के अंदर है, गरीब नवाज ऊपर है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं क्या देखता हूँ, अज़ाबात के फरिश्ते आ रहे हैं उसको अज़ाब देने के लिए। अब मैं घबराने लगा, अब मैं परेशान होने लगा। अरे मेरा पीर भाई है, अरे मेरा पीर भाई है, और इसको अज़ाब दिया, अब इसको अज़ाब दिया जाएगा। हुजूर गरीब नवाज कब्र के अंदर भी देख रहे हैं, बाहर रह करके, लेकिन आगे फरमाते गरीब नवाज ने मैं क्या देखता हूँ। इतने में हज़रत गौस हज़रत उस्मान हारूनी आ गए, मेरे पीरों मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गए और फरमाते हैं ऐ फरिश्तों ये मेरा मुरीद है, इसको हाथ नहीं लगाना। गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे पीरों मुर्शिद कब्र में आ गए, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। कब्र के ऊपर गरीब नवाज है, कब्र के अंदर आपके पीरों मुर्शिद है, आपके पीरों मुर्शिद है। अरे जब गरीब नवाज का के इल्म गैब का ये आलम है, तो फिर अहमद मुख्तार के इल्म गैब का आलम क्या होगा, फिर सैयदुल अबरार के इल्म गैब का आलम क्या होगा, फिर आमीना के लाल के इल्म गैब का आलम क्या होगा। आला हज़रत पुकार कर कहने लगे और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो बना, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। ये गरीब नवाज है, जरा जोर से कह दो ये गरीब नवाज है। जितनी तारीफें की जाएं सब कम है, जितने बयान किए जाएं सब कम है, लेकिन आओ जरा देखो हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने कैसे तबलीग दीन फरमाए हैं, कैसे दीन की आबियारी फरमाई है। अगर दीन की आबियारी किसी ने फरमाई है तो गरीब नवाज ने फरमाई है। ये अक्ल के अंधे तबलीग दीन क्या करेंगे, अरे तबलीग दीन तो गरीब नवाज ने की है, और वो कैसे की है फरमाते हैं। गरीब नवाज ने कैसे की है, वो ऐसे की है कि गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने एक बुत में कुछ मुशरिकीन पूजा कर रहे थे। गरीब नवाज ने देखा तो फरमाया अरे बुत की पूजा, बेजान की पूजा, ये कैसे मुमकिन है। उसकी पूजा करो जो इसको भी बनाया है, जो तुमको भी बनाया है, उसकी पूजा करो जो तुमको भी पैदा किया है, उसकी पूजा करो जिसने जन्नत और दोज़ख को बनाया है, उसकी पूजा करो।